اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صحیح بخاری کا ہمارا درس چل رہا ہے، آج اس کی 14ویں نشست ہے۔ آج کتاب الجمعہ کی حدیث پاک سے ہم اپنی درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اخبرنی ابن انس انہ سمع جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال كان جزء يقوم عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجزء مثل اصوات الاشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه۔ حضرت انس کے بیٹے صاحبزادے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا کہ انہوں نے فرمایا ایک خشک کھجور کا تنا تھا جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبے کے وقت ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے۔ اب یہ حدیث پاک کتاب الجمعہ کے اندر بھی آئی ہے، صحیح بخاری کے اندر، اور 2-3 مقامات پر اور بھی آئی ہے، اور ابن ماجہ کے اندر، سنن دارمی کے اندر۔ میں یہ چاہوں گا کہ تمام احادیث کو ملا کر ایک پیارا سا مفہوم آپ دوستوں کی نظر کروں۔ اور صحیح بخاری کتاب المناقب کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الی جزء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جوں جوں صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی گئی تو ایک عورت نے خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ایک لکڑی کا ممبر تیار کر دوں جس پر آپ تشریف فرما لوگوں کو جمعے کا خطبہ دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اجازت دے دی۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اجازت دی، اگلے جمعے وہ ممبر تیار ہو کر آ گیا، اور یہ خشک کھجور کا تنا ممبر سے سورا آگے تھا، اور ممبر تھوڑا آگے رکھا ہوا تھا۔ جب انسان دروازے سے انٹر ہوتا تو پہلے خشک کھجور کا وہ تنا آتا، پھر جا کر ممبر آتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اگلے جمعہ وہ ممبر لگا دیا گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب اس ممبر پر تشریف فرما ہونے کے لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خشک کھجور کے تنے کو کراس کیا تو وہ خشک کھجور کا تنا فراق رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں، عشق و محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں زار و قطار سے رونے لگا۔ اب صحابہ کرام کے ساتھ وہ مسجد بھری ہوئی تھی، تو صحابہ کرام نے اس کے رونے کے انداز کو اپنی اپنی سوچ کے مطابق بیان کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں سمعنا للجزء، میں نے اس خشک کھجور کے تنے کو، خشک تھا، سبز ہرا بھرا بھی نہیں تھا، خشک ہو چکا تھا، سوکھا ہوا تنا، جس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسم اقدس اپنا لگا کر خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے۔ جب اگلے جمعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ ٹیک آپ نے نہیں لگائی، ممبر پر بیٹھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے گئے، اس کو علم ہو گیا کہ آج جو شرف مجھے ملتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو چھونے کا اور مس کرنے کا، آج یہ شرف کسی اور کو مل رہا ہے۔ تو وہ جدائی رسول میں، ہجر و فراق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وہ رونے لگا زار و قطار سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں مثل اصوات الاشار، وہ فرماتے ہیں 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کی آواز کی طرح وہ خشک کھجور کا تنا ہجر رسول، فراق رسول، جدائی رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں رونے لگا۔
10 माह की हामला ऊँटनी की आवाज की तरह। और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर किताबुल मनाकिब सही बुखारी के अंदर वो रवायत करते हैं, वो फरमाते फहन्नल जिज़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही खुश खजूर के तने को क्रॉस किया, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजर फिराक में गिरिया उजारी करने लगा। और हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत में यह है, जो सुनन तिरमिज़ी की हदीस पाक है किताबुल मनाकिब के अंदर, वो फरमाते हैं फहन्नल जिज़ो हनीनल नाका। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं वो खुश खजूर का तना नबी अलैहिस्सलाम की जुदाई में इस तरह रोने लगा जैसे ऊँटनी अपने बच्चे की खातिर रोती है। जब ऊँटनी का दूध पीता बच्चा जुदा कर दिया जाए, वो ऊँटनी जो अपने बच्चे की जुदाई में आवाजें दे देकर रोती है, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं वो खुश खजूर का तना नबी अलैहिस्सलाम के हिजर फिराक में इस तरह रोने लगा। और एक और हदीस पाक में आता है, वो हजरत मुबारक बिन फुदाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उन्हें हजरत हसन ने और उन्हें अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह हदीस बयान फरमाई, सही इब्ने हब्बान की हदीस पाक। उसके अंदर रिवायत के अंदर अल्फाज ये हैं, हजरत अनस फरमाते हैं अना फिल मस्जिद, जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा खुतबा देने के मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए, मैं भी उस वक्त मस्जिद के अंदर बैठा हुआ था। फसमेतुल खशबता, मैंने उस लकड़ी के रोने की आवाज को अपने कानों से सुना। हन्नत हनीनल वालदे, हजरत अनस बिन मालिक की दूसरी रिवायत सही इब्ने हब्बान की, वो फरमाते हैं वो खुश खजूर का तना और वो लकड़ी का टुकड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में इस तरह रोने लगा जैसा बच्चा माँ की जुदाई में रोता है। दूध पीते बच्चे को माँ दूध न दे, प्यार न करे, थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दे जैसे मासूम बच्चा जारो कतार से माँ के दूध को पीने के लिए अपने आप को माँ की छाती से लगाने के लिए बेकरार होता है, ऐसे खुश खजूर का तना मुस्तफा को अपने साथ लगाने के लिए मचल रहा था, रो रहा था, और जारो कतार से इतना रोया कि उसके रोने की आवाज को तमाम सहाबा ने मस्जिद नबी के अंदर सुना, तमाम ने उसके रोने की आवाज को सुना। एक और हदीस पाक में सुनाने दारमी की हदीस पाक, उसके अल्फाज ये हैं, खारल जिज़ो का ख्वार सौर, वो बैल जैसी आवाज निकाल कर रोने लगा। अब ये मुख्तलिफ अल्फाज इसलिए हैं, हर एक ने उसके रोने की आवाज को अपनी सोच के मुताबिक आगे बयान किया। अब ये रवायत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर हदीस पाक में आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे उसके रोने की आवाज को सुना, आप मिंबर पर नहीं बैठे, सीधा उस इश्क वाले मोहब्बत वाले खुश खजूर के तने के पास आ गए। जब उसके पास नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लौ लम अल्तज़िमहु लमा ज़ाला हाकज़ा इला यौमिल क़ियामा हुज़्नन अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपके मेरे आका उसके पास गए, अपना दस्ते रहमत, दस्ते शफकत, दस्ते मोहब्बत आपके मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके ऊपर फेरा। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके ऊपर अपना हाथ फेरा, वो सिसकियां ले लेकर खामोश हो गया। जब वो खामोश हो गया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं आज इसको ये प्यार और मोहब्बत न देता और आज इसको अपने सीने से न लगाता और आज इस पर ये शफकत और मोहब्बत का इजहार न करता, ये मेरी जुदाई में क़यामत तक रोता रहता, और जो भी क़यामत तक इस मस्जिद में आता इसके रोने की आवाज को सुनता। इसको मेरे साथ इतना लगाव हो गया है, मेरे साथ इतनी मोहब्बत करता है, मेरा जिस्म हर जुमा इसके साथ लगता था, ये मेरे इश्क मोहब्बत में इस कदर रो रहा है, अगर मैं इसको हाथ न लगाता, ये सीने से न लगाता, प्यार न करता, तो ये क़यामत तक मेरी जुदाई में रोता रहता, क़यामत तक मेरी जुदाई में रोता रहता। हजरत काल वकान हसनो इज़ा हद्दस बिहाज़ल हदीस,
बका सुम्मा काला या इबाद अल्लाह। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये हदीस बयान करते खुश खजूर के तने की मोहब्बत वाली, तो हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ारो कतार से रोते दोस्तों, रोते और कहते अल्लाह के बंदो, अल खशबतो तहिन्नु इला रसूलिल्लाह शौकन अलैहि लिमकान मिनल्लाह। आप फरमाते अल्लाह के बंदो, लकड़ी हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के शौक में और अल्लाह के हजूर आपके मकाम और मर्तबे की वजह से रोती है। खुश खजूर का तना, ऐ लोगों, वो नबी की जुदाई में रोया, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में रोया। बस तुम इस बात के ज्यादा हकदार हो कि जुदाई रसूल में, नबी अलैहिस्सलाम की मुलाकात के इश्तियाक में, ऐ उम्मत के फर्दो तुम ज्यादा रोया करो। तो मैं आप दोस्तों से पूछता हूं, वो नबी गारों में रो रो कर जिसने उम्मत की बख्शिश की दुआएं की, वो नबी जो काबा कौसैन जैसी तन्हाइयों में जाकर रब्बे कायनात की मुलाकात के वक्त भी वो जो नबी अपनी उम्मत को नहीं भूला, आज अपने गिरबानों में झांक कर देखें, क्या हम उस नबी को नहीं भूल चुके? हमें दुनिया याद है, दुनियादारी याद है, दुनिया की मोहब्बत याद है, दुनिया में जीना, दुनिया में मरना, शान और शौकत से जीना, ये हमें याद है। याद नहीं तो फकत अल्लाह और उसका रसूल याद नहीं, अल्लाह और उसका रसूल याद नहीं। इसलिए तो दर बदर की ठोकरें खा रहे हम। इसलिए किसी इंसान को कल्बी सुकून नहीं, दिली सुकून नहीं। सहूलियात देखें, किस चीज की कमी है आज के दौर में? हर शय इंसान की जरूरत की इंसान के पास मौजूद है। इतनी सहूलियात के बावजूद भी इंसान को सुकून कल्बी, इत्मीनान कल्बी नसीब नहीं। उसकी वजह क्या है कि हमने अल्लाह रसूल का दामन छोड़ दिया है। वो तो खुश खजूर का तना था जो नबी अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत करता था। हम तो फिर भी इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, हमें तो उससे बढ़कर अपने नबी से प्यार और मोहब्बत करना चाहिए। अब इस हदीस पाक से जो मोहब्बत की बातें आगे साबित होती हैं वो भी साथ में आपको बताता चलूं। अबू नुआइम ने हिल्यतुल औलिया में यह रवायत किया, हजरत अमर बिन अबी यखलू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह से एक शख्स ने पूछा, ईसाइयों में से, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में से, उसने कहा हमारे ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मोजज़ात दिए, इह्या अल मौता, वो मुर्दों को जिंदा करते थे। बड़ी तवज्जो वाली हदीस। इमाम शाफी से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में से किसी ने सवाल किया कि हमारे नबी को अल्लाह ने यह मोजज़ा दिया था कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे, क्या तुम्हारे नबी को भी अल्लाह ने कोई ऐसा मोजज़ा दिया? तो मैं इसका मफहूम पेश कर रहा हूं इमाम शाफी के जवाब का, थोड़ा खोल कर, ताकि तमाम दोस्तों को समझ लगे। इमाम शाफी ने यह जवाब दिया, काल आता मुहम्मदन हनील अल जिज़, हाँ हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह मोजज़ा दिया कि आपकी जुदाई में खुश खजूर का तना रोया, जब जिसके साथ आप टेक लगाकर जुमा का खुतबा दिया करते थे। हत्ता सुमिया सौतहू, उसके रोने की आवाज को लोगों ने सुना। अब ये जवाब इमाम शाफी ने क्यों दिया, मैं इसकी तशरीह लाजमी समझता हूं आप दोस्तों को समझाना। सवाल ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते हैं। इमाम शाफी ने जवाब दिया कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने यह मुआजिजा दिया कि आपकी जुदाई में खुश खजूर का तना रोया। अब इन सवाल के जवाब में जोड़ क्या है मैं ये बताना चाहता हूं। इमाम शाफी ये बताना चाहते थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह मुआजिजा दिया कि वो मुर्दे को जिंदा करते थे। वो मुर्दा जिसके जिस्म में एक फर्क आता था कि उसके जिस्म से रूह निकल जाती है, रूह निकल जाती है, चेहरा वैसे का वैसे सलामत, आंखें वैसे की वैसी सलामत, कान वैसे के वैसे सलामत, पूरा जिस्म सही सलामत,
इंसान पड़ा हुआ है, एक चीज नहीं, क्या रूह जो निकाल दी गई। ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे? कुम बिइज़्निल्लाह कहकर उसकी निकाली हुई रूह को वापस लौटा देते थे अल्लाह के हुक्म से। यह मौजज़ा था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, और कोई नहीं करते। ईसा अलैहिस्सलाम, आंखें पहले से मौजूद थी, जैसे रूह आ जाती आंखें देखना शुरू कर देती। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा करते, कान पहले से मौजूद थे, वो सुनना शुरू कर देते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा करते, जबान पहले से मौजूद थी, वो बोलना शुरू कर देती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा करते, रूह निकल जाती, आपके कुम बिइज़्निल्लाह कहने से रूह वापस लौट आती। हाथ पहले से मौजूद थे, वो काम करना शुरू कर देते। पांव पहले से मौजूद थे, उनके साथ इंसान चलना शुरू कर देता। तो इल्म हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब मुर्दे को जिंदा करते थे, उनका मौजज़ा फकत ये था कि निकाली हुई रूह को अल्लाह के हुक्म से वापस लौटाते थे जिस्म के अंदर, जिससे मुर्दा जिंदा हो जाता था। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, मेरे नौजवान दोस्तों जो इस खिताब को सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, ये बातें अपने नौजवान दोस्तों को बताएं। कैसा प्यारा नबी, कैसा अजीम नबी, कैसा बादशाह नबी, कैसा सुल्तान नबी, कैसा इमामुल अंबिया नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ने हमें अता किया, कि अल्लाह ने उसको ऐसा मौजज़ा अता किया जो ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने अता नहीं किया था। वो क्या? वो ये कि मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में जब मिंबर लकड़ी का नहीं बना था, आप एक खुश खजूर का तना था जो मस्जिद के अंदर था, उसके साथ जिस्म को टेक लगाकर जुमा का खुतबा देते थे। जब नबी अलैहिस्सलाम के लिए मिंबर बन गया तो वो मेरे और आपके नबी की जुदाई में रोने लगा। इमाम शाफी कहते हैं, जब अगले जुमा नबी अलैहिस्सलाम जुमा खुतबा देने के लिए आए, इधर खुश खजूर का तना था, इधर मिंबर रसूल सजा था। नबी अलैहिस्सलाम ने जैसे ही खुश खजूर के तने को क्रॉस किया, वो रोने लगा। इमाम शाफी कहते हैं, मेरा सवाल यह है, उसने नबी को देखा कैसे? वो तो लकड़ी का खुश तना था। तो इमाम शाफी ने यह जवाब दिया, ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, रूह लुटाते थे। आपके मेरे नबी का मौजज़ा है, जिस खुश खजूर के तने के साथ आपके मेरे नबी टेक लगाते थे, आपके मेरे नबी के जिस्म के सदके उसके अंदर जान भी आ गई, अल्लाह ने उसको आंखें भी दे दी, जिसके सदके उसने देख लिया कि ये नबी आज मेरे साथ टेक लगाकर जुमा का खुतबा नहीं देगा, बल्कि आज मिंबर पर बैठेगा। इस वजह से वो ज़ारो कोतार से रोने लगा। आपके मेरे नबी की मोहब्बत ने, उसको मौजज़े ने उसको आंखें अता कर दी। आपके मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब उसके रोने की आवाज़ को सुना, उसके करीब गए। आपके मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, पहले नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ रखा प्यार से, फिर सीने से लगाया, तो आपके मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उस खुश खजूर के तने को शऊर और एहसास भी दे दिया, ये किसी और का हाथ नहीं बल्कि दस्ते मुस्तफ़ा है, दस्ते मुस्तफ़ा है। इसलिए तो वो सिसकियां ले लेकर खामोश हो गया। जब चुप हो गया, आपके मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उससे कलाम किया। जब आप किसी से कलाम करते हैं, आगे वाला सुने ना, वो जवाब कैसे देगा? जब आपके मेरे नबी ने कलाम किया, आपके मेरे नबी अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा था कि उस खुश खजूर के तने को नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कान भी अता कर दिए थे, जिससे उसने नबी के कलाम को सुना। मेरे अब आपके आका ने फरमाया, यही अगर तू चाहता है तो तुझे हरा भरा दरख्त कर दूं, तू सूख चुका है, दोबारा तुझे हरा भरा कर दूं, लोग तेरा फल खाएं। अगर तू चाहता है तो तुझे जन्नत में लगा दूं, वहां तेरा मेरी उम्मत के सालिहीन औलिया कराम फल खाएंगे। जब उसने ये सुना तो उसने जवाब दिया। जवाब जबान से दिया जाता है। आपके मेरे नबी का ये मौजज़ा फिर अल्लाह ने आपको अता किया कि उस खुश खजूर के तने को जबान भी अता कर दी, जबान भी अता कर दी। वो बोला, अर्ज की, या रसूलल्लाह, इस दुनिया से मैं आखिरत को तरजीह देता हूं। आपके मेरे नबी ने फिर मस्जिद नबी को के अंदर गड़ा खुटाकर वहीं उस खुश खजूर के तने को दफन कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का फकत क्या मौजज़ा था दोस्तों,
कि वो कुम बिज़निल्लाह कहकर रूल उठाते थे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़ा ये था कि आपने फकत रूह नहीं डाली, आपने खुश खजूर के तने के अंदर, जिसके अंदर रूह भी नहीं थी, आपके मेरे नबी का मौज़ा कि उसके अंदर रूह डाली। पहला मौज़ा। दूसरा ये मौज़ा, उसके कान नहीं थे, मुस्तफ़ा ने कान अता कर दिए अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से, मैं बार बार कह रहा हूं, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की कुदरत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़ा था। आंखें नहीं थी, आंखें अता कर दी उस खुश हुजूर के तने को। जबान नहीं थी, जबान अता कर दी। एहसास और शऊर नहीं था, एहसास और शऊर अता कर दिया। ये और आपके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़ा था। ये आपके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़ा था कि उस खुश खजूर के तने को आपके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदा भी किया, आंखें भी दी, कान भी दिए, जबान भी दी। तो ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार को जवाब दिया, जिसने ये सवाल किया था, क्या आए इमाम शाफी, तेरे नबी को भी अल्लाह ने यह मौज़ा दिया कि उन्होंने मुर्दे जिंदा किए हों? तो आपने कहा हाँ, तुम मुर्दों की बात करते हो, हमारे नबी ने तो एक खुश खजूर के तने को जिंदा कर दिया था, खुश खजूर के तने को जिंदा कर दिया था। तो आज शब कदर की रात भी है, आज बड़ी अजीम रात भी है दोस्तों। आखिरी दरस बुखारी के साथ साथ आज की रात के हवाले से भी ये पैगाम सुन लें, दोस्तों को बताएं, मैसेज करें, दोस्तों को आगाह करें। हजरत इमाम हसन मुश्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे शब बारात के हवाले से पूछा गया कि आप शब बारात कैसे मनाते हैं। जो हजरत बीवी फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हैं, हजरत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजुल करीम के बेटे हैं, नबी अलैहिस्सलाम जिनके नाना हैं, वो कह रहे हैं कि मैं शब बारात की रात को 3 हिस्सों में तकसीम करता हूं। कितने हिस्सों में? शब बारात की रात को 3 हिस्सों में तकसीम करता हूं। पहला हिस्सा अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ने में गुजारता हूं, दुरूद पढ़ता हूं। दूसरा हिस्सा इस्तग़फ़ार में गुजारता हूं, अस्तग़फ़ार, अल्लाह से माफी मांगने में। और तीसरा हिस्सा आप फरमाते हैं इमाम हसन मुश्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु कि एक आखिरी हिस्सा नवाफिल में सर बसुजूद अल्लाह के हजूर होकर, सर बसुजूद अल्लाह ताला की मैं इबादत करता हूँ। इस तरह मैं शब बारात को अल्लाह की बारगाह में गुजारता हूँ। और आज की बड़ी अजीम रात दोस्तों, ये वो अजीम रात है दोस्तों, जिस रात इंसान के नाम अमाल का नया दफ्तर लिखा जाता है, पिछले साल के दफ्तर को लपेटा जाता है। आज रात अगर आप इबादत करेंगे, जो पिछले साल का रजिस्टर होगा उसके एंड में लिखा होगा कि फलां फलां ने ये इबादतें की, और जो नए साल का रजिस्टर का पहला सफा होगा उसके अंदर भी लिखा होगा कि इस बंदे ने खुदा की इबादत की, अल्लाह को याद किया। तो पिछले साल के इख्तिताम वाले नामा अमाल की आखिरी सफ़े पर भी लिखा होगा कि फलां फलां ने अल्लाह की इबादत की, और अगले साल के पहले पन्ने में भी लिखा होगा कि इस बंदे फलां फलां ने अल्लाह की इबादत की। और आज की रात जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है, शिर्क करता है, आज की रात उसको नहीं बख्शा जाता। जो ताल्लुकात तोड़ता है, रिश्तेदारों के साथ बिला वजह नाराज है, कोई वजह नहीं, बिला वजह आपस में ताल्लुकात रिश्तेदारों के साथ तोड़ने वाला, आज की रात ऐसे शख्स को भी रब्बे कायनात नहीं बख्शता। और तकब्बुर के साथ चादर लटकाने वाला, तकब्बुर के साथ चादर लटकाने वाले को भी रब्बे कायनात नहीं बख्शता। गुरूर के साथ वालदैन के नाफरमान को आज की रात नहीं बख्शा जाता। शराबी, शराब बनाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पीने वाला, इन तमाम लोगों को जो इसके अंदर, इस काम के अंदर मुलव्विस हैं, ऐसे लोगों को भी आज की रात नहीं बख्शा जाता। इतनी अजीम रात, लेकिन इन चंद बद नसीबों को आज की रात भी नहीं बख्शा जाता। तो ये अजीम रात है। इस अजीम रात में रब्बे कायनात की इबादत करें। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं जामिल कबीर कंजुल उमाल की हदीस पाक, वो फरमाती हैं, वैसे तो रब्बे कायनात हर लम्हा, हर लहज़ा, हर सात
अपने काबा पर अपनी तजल्ली फरमाता है, नूर की बरसात फरमाता है। लेकिन शब बारात की रात जब आती है, निस्फ शाबान की, 15 शाबान की रात जब आती है, तो उस रात रब्बे कायनात खुसूसी तौर पर खाना काबा पर अपनी तवज्जो फरमाता है, खुसूसी नजर करम फरमाता है, और मोमिनों के दिल को भी खाना काबा की तरफ मोड़ देता है, मोमिनों के दिल को भी खाना काबा की तरफ मोड़ देता है। तो आज की रात रब्बे कायनात के खुसूसी करम की रात है। आज की रात रब्बे कायनात इंसानों को आवाजें दे रहा है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसको बख्श दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला उसको झोलियां भर दूं, है कोई मुझसे औलाद मांगने वाला उसको औलाद कर दूं, है कोई मुझसे नेक तमन्नाएं नेक दुआएं मांगने वाला उसकी दुआएं कबूल कर दूं। ये आज जो सूरज गुरूब हुआ, कल सुबह सूरज तुलू होने तक रब्बे कायनात पूरी रात इंसानों को आवाज देता रहेगा, है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसकी सवाल को पूरा करूं, है कोई मुझसे दस्ते सवाल करने वाला उसके झोली में मैं उसकी मन मांगी मुराद जैज डाल दूं, है कोई मुसीबत ज़दा मैं उसको आफियत दे दूं, है कोई बीमार मैं उसको बख्श दूं। ये तुलुए फजर तक मुसलसल रब्बे कायनात इंसानों को आवाज देता रहता है, इंसानों को आवाज देता रहता है। और नबी अलैहिस्सलाम के हदीस पाक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 15 शाबान की रात मेरे पास जबरील अमीन आए और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर अक़दस सर अनवर आसमान की तरफ उठाएं। मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ अपना चेहरा उठाया। जो जबरील अमीन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको इल्म है आज कौन सी रात है, ये कैसी रात है? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज 15 शाबान की रात है। आज की रात की बरकत से अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे इंसानों के लिए खोल देता है। 300 दरवाजे आज की रात इंसानों के लिए अल्लाह ने खोल दिए हैं। खुश नसीब है वो जो आज की रात जाग कर अपने रब को याद कर रहे हैं, आज की रात अपने गुनाहों की माफी मांगकर गिड़गिड़ाकर अल्लाह के सामने एक मासूम, एक गुनहगार, आजिज, फकीर बनकर दस्ते सवाल करके रब को राजी कर रहे हैं। खुश नसीब है वो जिनकी जबीनें आज सजदों के अंदर पड़ी हुई हैं। खुश नसीब है वो जो आज की रात शब बेदारी करेंगे। खुश नसीब है वो जो आज रात जाग कर अपने मौला को राजी करेंगे। तो दोस्तों, साल के अंदर 365 दिन में आज सोते रहते हैं, ये आज जागने की रात है, अपने नाराज रब को राजी करने की रात है, अपने रूठे रब को आज मनाने की रात है। 300 दरवाजे रहमत के आज रब खोलता है। आज रब की रहमत छमाछम लोगों पर बरस रही है। खुश नसीब है वो जो अपनी झोलियां फैलाकर उन रहमतों के कतलों को अपने दामन में समेट रहे हैं। बदनसीब है वो जो आज की रात भी गुनों में मुलव्वस हैं, आज भी गफलत के अंदर पड़े हुए हैं, आज की रात भी शैतान ने उन पर हमला किया हुआ है। तो दोस्तों, आज की रात बड़ी अजीम रात है। आज की रात को जिस कदर हो सके इस रात को मनाएं, तो रब्बे कायनात हम सबको इस रात की बरकतें अता फरमाए। इस रात के अंदर जो रहमतों का नज़ूल हो रहा है, हम गुनाहगारों को भी उस रहमत के अंदर शामिल कर दे। रब्बे कायनात ने जो रहमत की चादर बिछाई हुई है, उसके अंदर हम गुनाहगारों को भी जगह अता फरमा दे। आज की रात ऐ रब्बे कायनात, आखिर में दुआ करते हैं, तेरे घर का तवाफ करने वाले जो इस वक्त काबा का तवाफ कर रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं दे रहे हैं, मेरे परवरदिगार जो काबा के सहन में तुझे याद कर रहे हैं, मेरे परवरदिगार जो तेरे काबा के सामने झोलियां फैलाकर दुआएं कर रहे हैं, ऐ मेरे रब आज की रात जो तेरे घर के सामने हजर अस्वद को चूम रहे हैं, और मेरे परवरदिगार जो तेरे घर में क़याम के अंदर है, उनके क़याम का वास्ता, जो तेरे घर के अंदर
सजदों के अंदर पड़े हैं उनके सजदों का वास्ता, जो दुआ कर रहे हैं उनकी दुआ का वास्ता, जो तवाफ कर रहे हैं उनके तवाफों का वास्ता, जो उम्रा कर रहे हैं सफ़ा मरवा में दौड़ रहे हैं उनके उस दौड़ने का वास्ता, जो रोज़ा रसूल पर हाजिरी दे रहे हैं उस रोज़ा रसूल की हाजिरी का वास्ता। ऐ परवरदिगार, आज रात हम गुनाहगारों को उन खुश नसीब इंसानों में शामिल कर दे जिनकी बख्शिश का परवाना आज तूने अता करने वाला है, और उन बदनसीबों से हमें महफूज फरमा, उन गुनाहगारों से हमें महफूज फरमा कि जिन्हें आज की रात भी तूने बख्शेगा। मेरे अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, हम अपनी इनके सारी अपने गुनाहगार होने का इतराफ़ करते हैं। मेरे अल्लाह, ए परवरदिगार रब, अपने महबूब के सदके जो जो सुन रहा है, जो जो इस दर्स के अंदर शामिल है और बाद में सुनते रहेंगे, मेरे परवरदिगार, आज की रात के सदके और इस दर्स से सही बुखारी के सदके, मेरे परवरदिगार, अपने नेक बंदों के सदके हम सब की झोलियाँ अपने रहमत से, अपनी खैरात से, अपने लुत्फ़ व करम से, अपनी रज़ा से, अपनी बख्शिश से, अपनी अनायात से, अपने करम से हम सब की झोलियाँ भर दे, और हम सब का जीना इस्लाम पर फरमा, हम सब का खात्मा ईमान पर फरमा। तो रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आज हमारी ये 14वीं नशिस्त दर्स सही बुखारी के अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह हर रोज़ ये दर्स होता है 11 बजे के बाद लाइव। ये फेसबुक पर एक निराला एक काम है, अल्लाह ताला ने ये बारखान की खुश नसीबी समझें और अपने इलाके की खुश नसीबी समझें, खेतरान कौम की खुश नसीबी समझें कि रब्बे कायनात ने हमें ये एजाज़ दिया कि आप सर्च करें, आपके पास फेसबुक है। आज तक किसी ने लाइव फेसबुक पर इस तरह दर्स सही बुखारी नहीं दिया। ये हम गुनाहगारों के नसीब में आया। हम अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि हम लाइव दर्स बुखारी दे रहे हैं। तो रब्बे कायनात जो जो दोस्त इसमें शामिल होता है, जिस तरह का ताउन करता है, अल्लाह ताला तमाम दोस्तों का शामिल होना, ताउन करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।